Subhati Para Sports Meet 2022 and as well as International Day of Persons with Disabilities. I would like to welcome our Honorable Vice Chancellor Sir, Major General Dr. G.K. Thapliyal, and also Vaibhav Goyal Sir, and our Dean Professor Sandeep Kumar Sir to be on such an occasion. I would also like to welcome all the participants in Subhati Para Sports Meet 2022. Physical education represents a form of education that values movement through body development, communication, the learning of movement abilities and skills that are favorable to the practicing of physical exercise and movements during an entire lifetime. Sports represents a part of culture being understood from its beginning as an ideal means to maintain health, to form a body and even a character. Its main feature being the competition, which stimulates the desire to be known and implicitly, the obtaining of performance. This represents the valuing element in the symbiosis with physical education, both activities becoming permanent during the entire period of education of the young generation. The fact that the formation of modern human supposes this development from a physical, social, intellectual, ethical, and aesthetical point of views must be kept in mind in connection to the demands of the society. I would like to quote an example for the participants. The son of the mill worker who was struck by polio at the age of 5 and lost function in his left leg won 7 gold medals in the international competitions, became ranked world number 1 and made his country proud at the Tokyo Paralympic Games. This is just one example out of many inspiring stories waiting to be heard. Several Indian athletes who overcame humble beginnings knows this story all too well. Moving forward with the event, I would like to call Professor Sandeep Kumar Sir on the stage to motivate our participants and the students. Please, sir. Jai Hind. I heartily welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor G.K. Thapliyal Sir, and Professor Vaibhav Goyal Sir, Dean Faculty of Law, all other faculty members, participants from different units of Subharti University, employees and student also, and the student of Physical Education and Sports Sciences who are present here. This is first time when we are conducting the sports meet for the Divyangjans in Subharti University. सुभारती यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, जब से शुरुआत है सुभारती संस्थान की, जब ही से लेकर आज तक दिव्यांगों के लिए अलग अलग तरीके से जो भी बेहतर सुविधाएं दी जा सकती हैं, जो उनको सपोर्ट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, इन द फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट, इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट स्कॉलरशिप, फी कंसेशंस, वो सब कुछ संस्थान अलग अलग तरीके से कर रहा है। इसमें यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होने के बाद अलग अलग कमेटीज़ बनी और फाइनली 2019 में एक सेंटर एस्टेब्लिश किया गया, दैट इज सुभारती डिसेबिलिटी एडवाइजरी सर्विस सेंटर। सिर्फ सेंटर का फोकस यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हायर एजुकेशन में सर्विसेज दें, हायर एजुकेशन को प्रमोट करें फॉर दिव्यांगजन्स, और जितने भी हमारे विश्वविद्यालय के अंदर कार्यरत एम्प्लॉयज़ हैं, स्टूडेंट हैं, उनको जो भी कोई समस्या आती है उन समस्याओं को सॉल्व करते हुए उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे सके। ये सेंटर लगातार अपने कार्य कर रहा है। आज अगर विश्वविद्यालय में बात करें तो विश्वविद्यालय के हर किसी बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट्स हैं, रैंप्स हैं। हॉस्पिटल की बात करें तो सेपरेट ओपीडीज हैं फॉर दिव्यांग्स, और जो भी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जो आवश्यक हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी एम्प्लॉय के लिए, वो सब सुभारती विश्वविद्यालय में एग्जिस्ट करते हैं। कई बार जैसे बीच में मैं इंटरेक्शन करता हूँ हमारे दिव्यांगजन से। अभी हमारे पास जो टोटल स्ट्रेंथ है दैट इज़ 40 हैं हमारे पास। 40 में से 12 स्टूडेंट हैं, 28 एम्प्लॉयज़ हैं। उन सब में कई बार ऐसी चर्चा हुई कि हमारे लिए भी स्पोर्ट्स होना चाहिए, तो दिस इज़ द फर्स्ट इनिशिएटिव जिसके अंदर हमने कैरम, एथलेटिक्स और साइकिलिंग 3 इवेंट को रखा, स्टूडेंट्स के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी, मेल एंड फीमेल कैटेगरी के लिए, सभी के लिए। क्योंकि भारत सरकार भी कहीं ना कहीं लगातार इसके ऊपर काम कर रही है, और अगर
प्रेजेंट स्टेटस को हम देखें, पैरा ओलंपिक्स को देखें, तो पैरा ओलंपिक्स में ओलंपिक से अच्छा प्रदर्शन भारत का पैरा ओलंपिक्स में है। कहीं ना कहीं उसकी रिकॉग्निशन की दिक्कत होती है, जो अभी नहीं है, वो भी धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही है। अभी हर किसी व्यक्ति को इक्वल रिकॉग्निशन मिल रही है, उनको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, कई सारे डायरेक्ट फंड रिलीज़ किए जा रहे हैं जो पैरा ओलंपिक में हैं, और जो भी खिलाड़ी पैरा ओलंपिक गए हैं, यूँ समझ लीजिए उनकी लाइफ टोटली सेटल्ड है, और वो कहीं ना कहीं इंडिया कैंप और लगातार नेशनल कैंप में ही रहते हैं और अपनी प्रोग्रेस आगे बढ़ा रहे हैं लगातार। ये 2 दिन का इवेंट है जिसके अंदर ये तीनों इवेंट कराए जाएंगे। साथ ही साथ मेन जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो 3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। लास्ट ईयर भी हमने इसके ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट का लेक्चर कराया था, व्याख्यान कराया था डॉक्टर अजीत यादव का। इस ईयर भी हम कल एक सेमिनार इसके ऊपर करने जा रहे हैं। सेमिनार का विषय है फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंसेस और पैरा स्पोर्ट्स को डेवलप करने में उनकी भूमिका क्या है। क्योंकि जहाँ स्पोर्ट्स की बात होती है, जहाँ पर परफॉर्मेंसेस की बात होती है डेवलप करने के लिए, वहाँ बेस सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन है, वो आइदर स्कूल हो या हायर एजुकेशन हो। तो फिजिकल एजुकेशन में डे टू डे ऐसे चैलेंजेज आते हैं। हम लोगों को बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ को, कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज़ को, जैसे एट प्रेजेंट अभी 27 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं, उनको देखते हुए उनके ट्रेनिंग शेड्यूल्स बनाने होते हैं, मॉड्यूल्स बनाने होते हैं और उनको स्टार्ट करना होता है। मेरा एक विशेष स्नेह है दिव्यांगजन से, और मैं अपने माननीय कुलपति साहब को बताना चाहूँगा, ये अपॉर्चुनिटी मुझे सर कभी सन 2000 में पहली बार मिली। जब मैं स्विमिंग की अपनी प्रैक्टिस करता था, तो जो मेरे कोच थे, उन्होंने इंडिया में पहली बार एक स्विमेड एसोसिएशन बनाई, स्विमिंग फॉर डिसेबल्ड्स। हमारी विल होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सब कुछ संभव है। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद। Dean Faculty of Education, Dr. Sandeep, Dean Faculty of Law, Dr. Vaibhav Bharati, सभी फैकल्टी मेंबर्स प्रेजेंट, सभी स्टूडेंट्स और सबसे ऊपर हमारे दिव्यांगजन जो सुभारती यूनिवर्सिटी में या तो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या किसी तरह से किसी व्यवसाय काम कर रहे हैं, आप लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप इस पैरा स्पोर्ट्स मीट में शामिल हो रहे हैं। और इसके लिए मैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट डीन एंड ऑल फैकल्टी मेंबर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस पैरा स्पोर्ट्स मीट। आई थिंक फर्स्ट टाइम इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। आप लोगों को जैसा पता ही होगा कि हमारे संविधान में प्रियम्बलम में 2-3 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, होंगी भी, बट उसके मैं 2 मुख्य चीज़ों को ले रहा हूँ। एक है हमारी समानता का अधिकार, इक्वालिटी, और दूसरा अधिकार डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी। तो इन दोनों चीज़ों का अधिकार हमारे जितने भी भारतीय नागरिक हैं सबको मिलना चाहिए, चाहे वो किसी क्षेत्र के हों, किसी वर्ग के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी रीजन के हों, या फिजिकली किसी भी फॉर्म में हों, कैसे भी हों। अब जैसे आप लोग दिव्यांग हैं, एक जो शब्द हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था, उससे पहले डिसेबल्ड वर्ड का इस्तेमाल होता था और अभी ना डिफरेंटली एबल्ड एक वर्ड इस्तेमाल होता है। तो जो यहाँ पे डिसेबल्ड वर्ड है, धीरे धीरे हम इसको बदल देंगे डिफरेंटली एबल्ड। ये सब क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है? संविधान में तो ये अधिकार बहुत पहले से था, लेकिन
उसका अनुपालन नहीं हो रहा था, क्योंकि शायद ऐसी सोच नहीं थी। आप लोगों का भी उतना ही अधिकार है इस धरती पे और इस धरती के हर काम पे, भारतवर्ष के हर काम पे, जितना कि एक आप हमारी नज़रों में एक नॉर्मल इंडिविजुअल का होता है। आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, इसलिए आप लोगों के लिए लिटिल डिफरेंटली एबल्ड तरीके से हर काम होते हैं। आपको सुविधा के लिए आप चढ़ नहीं सकते सीढ़ियाँ, तो आपके लिए रैंप बनाए जाते हैं, आपके लिए लिफ्ट की होती हैं। जैसे कि डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन ने बताया कि हमारी सुभारती यूनिवर्सिटी किस तरह से आप लोगों को सम्मान देने के लिए, यह सम्मान है, आप लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आपको सम्मान दिया जाता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जितने भी डिफरेंटली एबल्ड हैं यहाँ पे, फर्स्ट थिंग तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आप लोग इस पैरा उसमें दिल से जुड़ रहे हैं, पैरा स्पोर्ट्स टीम में, और इसमें भाग ले रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि आपके दिमाग में कभी भी ये नहीं होना चाहिए, एक हीन भावना जिसे कहते हैं ना, वो कभी ना हो कि हम समर्थ नहीं हैं किसी चीज़ में। तो ये असमर्थता की भावना आपको असमर्थ बना देती है। आपके सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। डेफ एंड डम हेलन कलर जो थे, कितने काम किया था, कहाँ तक पहुँच गए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप हिस्ट्री में देखें, इतिहास में जाएं, तो आपको मिलेगा कि बहुत ऐसे लोग हैं। कई आप देखें, कभी आपके हाथ नहीं है लेकिन बच्चा पाँव से पूरी पेंटिंग करता है। आपके अंदर यदि दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो एवरेस्ट पे भी चढ़ सकते हैं यदि आपके अंदर वो चाहत, क्योंकि जब आप चाहते हैं, तो जब आपकी दृढ़ इच्छा होती है, तो कायनात की पूरी शक्ति आपके ऊपर आपको उठाती है, आपको मदद करती है। लेकिन यही चीज़ जब आप बैठ जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो ये चीज़ शरीर से समर्थ नहीं हूँ, या मन से समर्थ नहीं हूँ, या वाणी से समर्थ नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, बस वहीं पे आपकी यात्रा ख़त्म हो जाती है और आप रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगते हैं। तो ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं चलना है, आपको अपवर्ड डायरेक्शन में चलना है। और आपको कभी भी अपनी जो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल जो भी वीकनेस है उस पर कभी फोकस नहीं करना है। हमेशा अपनी ताकत पे फोकस करना है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करना है। जब आप उस पर फोकस करेंगे, जैसे मैंने कहा, जब आप फोकस किसी चीज़ पे करते हैं तो वो बहुत ऊर्जावान हो जाती है और उसके बाद आपकी प्रगति होने लगती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। आप इस बार शायद कम नंबर हैं, अगली बार नंबर और बढ़ेंगे। इस बार आप शायद 100 मीटर की रेस में या कुछ करने में ज़्यादा नहीं करेंगे, दौड़ पाएंगे। अगली बार जब ये प्रतियोगिता होगी तो उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप शायद उन लोगों के भी बीट कर लेंगे जो अपने आप को बहुत शरीर से सक्षम समझते हैं। तो इसी भावना के साथ आप लोग बिल्कुल मन में दृढ़ निश्चय करके अपने ऊपर, अपने शरीर को प्यार करिए, अपने आप से प्यार करिए और आगे बढ़िए। और अपना काम कभी भी इससे मत करिए कि मुझसे नहीं हो सकता है। मैं जब भी किसी दिव्यांगजन से जब मिलता हूँ लिफ्ट में और कहीं और बात करते हुए, तो मुझे बड़ी एक्चुअली प्रेरणा मिलती है लोगों से कि बहुत खुश और बहुत पॉजिटिव रहते हैं। एक है दिव्यांगजन, वो टॉफ़ी देते हैं। कौन है? आज आए नहीं हैं वो। हर वक्त अपनी जेब में टॉफ़ी रखते हैं और जब भी जाते हैं टॉफ़ी ज़रूर देते हैं। कितनी खुशियाँ बांटते हैं, हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। तो विद ऑल दीज वर्ड्स आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। 2 दिन का है, कल का और आज का। आप लोग सब बढ़ चढ़ के भाग लेंगे इसमें, और बाकी लोग इनका पूरा उत्साह बढ़ाएंगे और इनको प्रोत्साहित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।